चाहे वो लेस्बियन रिलेशनशिप हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, इंटरसेक्स हो और मे बी एसेक्सुअल हो। So, doctor, what will you say on period sex? Because period sex कहा जाता है कि it helps in easing the Your body is to explore, चाहे वो masturbation हो, चाहे वो casual sex हो. You must explore it as much as you want, but till the limit. Before moving forward to this video, don't forget to like, share and subscribe. Because today's episode is not just about medicine, it's about impact. My guest today is a doctor who's not just saving lives, he's changing the way we look at healthcare. Dr. Charu Dutt Arora is a gold medalist, trained at Harvard and USC, and now leading elder and palliative care in India. He's been featured in Aaj Tak, Indian Express, Times Group, and beyond the hospitals, he is a mentor, a fashion enthusiast, and a powerful voice for inclusive healthcare. This episode is about life, loss, dignity, purpose, and everything they don't teach you in medical school. Let's get into it. An apple a day keeps a doctor away is what they say. So how true is that, doctor? So, Janvi, an apple a day keeps a doctor away. ये बिल्कुल सही बात है because apple is full of antioxidants. इसमें फाइबर है, विटामिन सी है, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके एजिंग प्रोसेस को धीरे करता है. सो व्हाट बेटर देन दैट डू यू नीड? इसमें विटामिन सी की वजह से आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती है. यू हैव अ कंप्लीट फुल पैकेज. बट डज दैट मीन दैट दैट इज द ओनली फ्रूट यू शुड हैव? नो. कभी भी एक फ्रूट सिर्फ पूरे दिन में लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी और आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. द मोटो ऑफ दिस idiom is that you should have a healthy diet, a balanced diet जिसके अंदर फाइबर हो, मिनरल्स हो, पानी की मात्रा हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, and everything in together in one form. So when you have a complete day on it, that is what keeps you healthy and keeps you away from any doctor checkups. And I kind of find it very weird कि आजकल की जो जनरेशन है वो उस चीज़ को इतना फॉलो नहीं कर पाती है. True that. I really want to discuss that with you कि जो आजकल के मतलब हम जेनजीज हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है स्पेसिफिकली जेनजीज की, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा आई वुड से फैंसी हो गई है कि हमें ऐसा दिखना है, हमें वैसा दिखना है, जिम भी जाना है पर हमें कूल बनने के लिए सिगरेट भी पीनी है, हमें वेप भी यूज़ करना है, हमें ड्रिंक्स भी करनी ही है. How would you bring that out? Like, what would you say on that? So it's a very valid question, Janvi, because Gen Z has technology at their hands. And when you have the best of the world at your hands, when you don't have to worry a lot, when you don't have to think about, moving out and doing things or working hard, I would say, they work smart. And when you work smart, you always have to pay a cost for it. And what is the cost for it? It means stress. Stress, sleepless nights, definitely difficult behaviors, anxiety issues, getting issues with your health. All this kind of builds up your cortisol levels. और अगर आप समझे medically, cortisol एक वो हार्मोन है जो आपको हमेशा स्ट्रेस में रखता है. वो हार्मोन है जब आपकी फ्लाइट मिस हो रही होती है तो जो हार्मोन रिलीज होता है. जब अब आप किसी से लड़ रहे होते हैं तो वो हार्मोन रिलीज होता है. सो दैट काइंड ऑफ रश दैट यू गेट इज व्हाट इज प्रेजेंट इन जेन जी इन मोस्ट ऑफ देम. और ये आपकी एंग्जाइटी को बिल्डअप करता है, आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है, आपके मूड डिसऑर्डर्स को बढ़ाता है, स्लीपलेस नाइट्स कॉज करता है. यू गेट ओवरली attached to somebody and then get overly detached to someone, जिसको हम bipolar भी बोलते हैं. So ये वाले जितने भी हमारे mood disorders हैं, ये सारे Gen Z को accessible हैं and it comes at a cost of the technology. इसके साथ साथ जैसे आपने बोला, smoking is not something new. Tobacco has been with us for years and so has been alcohol. But when it comes to mood issues, when it comes to stress disorders, people have kind of made tobacco and alcohol anonymous with relieving stress. उन्हें लगता है यदि हम tobacco लेंगे तो हमारा stress कम हो जाएगा, alcohol लेंगे तो वो कम हो जाएगा. Definitely it calms you down for a temporary period of time, but is that the solution? No. And that is what our generation and Gen Z or even Gen Beta for that matter, everyone has to understand that आप moderation में रखें, चाहे वो टेक्नोलॉजी को रखें, अपने वर्क प्रेशर को रखें, अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज को रखें. टिल द टाइम इट्स इन मॉडरेशन, nothing is bad whichever generation you are in. True. I mean, I agree to what you are saying. Also, like जैसे कि कोई बहुत excessively smoke करता है, excessive stress है, anxiety issues है, जैसे आपने mention किया कि आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा common हो गई हैं, sleepless nights है,
तो इसको क्या हम, जैसे कि अगर हमें सिगरेट को कंट्रोल में लाना है तो उसके लिए आप कुछ बताओगे कि कुछ ऐसे कर सकता है कोई, कि कोई ऐसे, जैसे निकोटिन का मैंने सुना है कि अगर आप निकोटिन लेना स्टार्ट कर दो तो सिगरेट की तलब कम होने लगती है, उसके अलावा कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं? Absolutely. Control is the key. Control is the key. Why do I say that? Is because ये आपके अंदर से आता है. Addiction doesn't happen in a day. Addiction takes years and de-addiction also takes years. ये एक प्रोसेस है जो इंसान खुद शुरू करता है और उसको छोड़ने में भी खुद ही काबिलियत रखता है. इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ टोबैको फॉर दैट मैटर, टोबैको जब आप लेना शुरू करते हैं तो यू स्टार्टेड विद ईदर योर फ्रेंड और एट योर वर्क और समथिंग लाइक दैट. इट गिव्स यू अ प्लेजर, देन प्लेजर टर्न्स इनटू कि आपके ब्रेन को एक सेंस ऑफ काम मिलता है. स्लोली एंड स्टेडली आपके गट को, कुछ लोगों के इमोशंस, अपने बावल मूवमेंट्स केवल टोबैको के साथ आते हैं. सो वो आपका गट और ब्रेन दोनों ने कनेक्शन बना लिया है. व्हेन दिस कनेक्शन गेट्स टू योर डेली एक्टिविटीज, तब आपकी एक डेली रिक्वायरमेंट सेट हो जाती है एंड दैट्स व्हेन यू गेट एडिक्टेड टू इट. नाउ कमिंग टू डी एडिक्शन, nicotine patches are highly effective, but it should be taken with a doctor's prescription because हर इंसान की tobacco requirement के हिसाब से ही उसके nicotine patch को use किया जाता है. How does nicotine patch works is by deceiving your brain. Your brain feels and your body feels कि actually tobacco is inside. It gives you the same energy, the same feel, the same calming effect as tobacco is giving you, but the harmful effects are not there. So you don't get into the habit of smoking. You don't have that puff instead. इसके अलावा psychological counseling, cognitive behavioral therapy, they are very important. But इन सब के सबसे ज़्यादा, इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? Motivation. If you are motivated, you have a good friend circle, and if you think better for yourself, then nothing is difficult. Because on the box of a cigarette clearly mention होता है smoking kills, उसके बाद भी लोग पीते हैं. As I said, it's not just the eyes which are working, it's your gut and your brain which is working. और हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही देख रहा है, हमारी आंखें ही देख रही हैं. But trust you me, your eyes see what your brain wants to see. अगर मैं देखना चाहता हूँ किसी चीज़ में तो मैं वही देखूंगा. अगर मैं नहीं देखना चाहता तो I'm absolutely fine with it. I mean, definitely. Speaking of hormones, which you mentioned in the answer, I would like to ask you कि आजकल attraction बहुत common हो गया है same sex में भी. So, is there any science behind this, or is there any medical answer behind this? Absolutely. Like, why do this happen? Absolutely. Homosexuality is nothing new. Homosexuality means getting attached to the same gender in a way where people see that you are attached to another gender. So homosexuality एक psychiatric issue नहीं है. Even the Indian Psychiatric Association has said it is not a disease. Although ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, people have termed it as a disease, people have termed it as a problem. No, it is not abnormal, it is not a problem. Just that आजकल के ज़माने में generations are much more open, much more advanced, they are much more vocal and opinionated. That's why people come out in open very easily. At the same time, homosexuality should be considered as normal as any other relationship. और gender चाहे कोई भी हो, चाहे वो lesbian relationship हो, gay हो, bisexual हो, intersex हो और maybe asexual हो, everybody is equal and everybody is inclusive. And diversification is the key of a harmonious relationship. So मेरे हिसाब से अगर आपका अच्छा communication है, आप अच्छा एक दूसरे को accept करते हैं, then there's no issue whether you love a boy or a girl or nobody. And you know, and personally I would say that इन चीज़ों की वजह से जो stress इतना बढ़ जाता है of defining normalcy versus abnormalcy, आपके cortisol levels इतने बढ़ जाते हैं, that's also one of the reasons why you are seeing so many chronic disorders such as cancer, thyroid, diabetes, PCOS. ये सारी जो problems हैं ये आपके internally chronic inflammation की वजह से हो रही हैं. And inflammation means सूजन. आपके माध्यम से मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हर बीमारी का जो chronic diseases हैं, even obesity for that matter, this all is a form of inflammation. And that is why people go anti-inflammatory or a non-inflammatory diet these days, जिससे आपको inflammation कम हो, body में सूजन कम हो, and you feel better and less bloated. आपने अभी PCOS, PCOD, डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में भी बात की, और ये सारे जो इश्यूज़ हैं यूजुअली पहले माना जाता था कि 30-20 के बाद लगता था कि एल्डर एक एज के बाद कि अच्छा ठीक है 30 साल की हो रही है बॉडी तो पुरानी हो रही है तो थोड़े बहुत इश्यूज तो आएंगे तो उसका फ्यूल कर देंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. बट आजकल ये सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि 18 साल की उम्र से शुरू हो जा रही हैं. ठीक है, तो इस पे आप क्या बोलोगे, क्यों शुरू हो जा रही है? जैसे मैं थायराइड और डायबिटीज़ के बारे में सबसे पहले चाहूँगी कि आप बात करो. सो जानवी, अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें, डायबिटीज़ इज़ नथिंग एल्स बट हाई ब्लड शुगर इन योर बॉडी.
ठीक है। अब हाई ब्लड शुगर आपकी बॉडी में मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। एक हो सकती है कि आपकी बॉडी में वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो शुगर कम कर पाए, और वो बचपन से ही होता है, इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम। वो पहले दिन से ही आपकी बॉडी डिफाइन कर देती है कि आपकी बॉडी में शुगर कम करने की जो कैपेसिटी एक शरीर की होती है वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है देन यू आर डायबिटिक फॉर लाइफ, और उसका अकेला सोल्यूशन क्या होगा? शुगर कम करने की दवा विच इज इंसुलिन। अगर आपकी लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, वो वाली डायबिटीज पहले के जमाने में आई वुड से 40 एंड प्लस 50 एंड प्लस में देखी थी, बट नाउ इट्स कमिंग इन द यंगर जनरेशन, even college going students, young adults, 25 30 year old corporate trainers, they are all having diabetes part 2 or type 2 diabetes. इसका रीजन है chronic inflammation. आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी में cortisol लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका पैंक्रियाज इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज नहीं होता है, ग्लूकोज की स्पाइक होती रहती है, लिवर खाना मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे योर शुगर्स आर कंप्लीटली हेवायर। और जब आपका डायबिटीज बढ़ता है, इट नेवर कम्स अलोन, इट अफेक्ट्स योर हार्ट, इट अफेक्ट्स योर किडनीज, इट Everything. अफेक्ट्स The everything. entire immune system basically. I would say that, and even your skin, your overall nerves, आपके बैक पेन होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन में एजिंग की प्रोसेस बढ़ने लग जाते हैं, आपकी सैगिंग हो जाती है, कोलाजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर आप इसके अंदर तक घुसें तो आपको पता चलेगा कि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इज नथिंग बट अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। और यदि आप अपनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एक बैलेंस डाइट लगते हैं, you move every day, you walk every day, you gym every day, but no steroids again. अगर आप ये सब कुछ करते हैं, then I'm sure you will have a very healthy life. And coming to thyroid disorders is a hormonal issue. Thyroid एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारे गले के बीच में होता है, और उसके बहुत ज़्यादा सेक्रीशन और बहुत कम सेक्रीशन में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसकी वजह से आपके वेट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्लीपिंग इश्यूज में आते हैं, आपके हेयर फॉल होता है, आपके स्किन में होता है, आपके पीरियड्स, फॉर वुमेन इट इज अफेक्टिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आल्सो। सो ये सारी चीज़ें आपके थायराइड डिसऑर्डर्स में देखी जाती हैं। बट थायराइड प्रॉब्लम्स इस एज में इसीलिए ज़्यादा देखी गई हैं क्योंकि because of the lack of balanced diet. People are consuming a lot of processed foods. You know, people are going for a very high protein vegetarian diet like soybean. People are going for more cruciferous vegetables like turnip, kale. तो ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं, ये भी आपके थायराइड के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं ज़्यादा एक्सेसिव लेने से। सो अगर आप सबसे कॉमनली देखें तो दैट इज प्रोसेस्ड फूड्स, एनी फॉर्म ऑफ वाइट ब्रेड, एनी फॉर्म ऑफ हाई सॉल्ट, यू नो, चिप्स, processed canned milk or processed canned drinks, all of that has an effect on your basal metabolic rate, basal index, and that is what is thyroid. अगर आपका वही चीज़ें खराब होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके थायराइड के हार्मोन को रेगुलेट करने में मुश्किल होगी, एंड दैट इज द रीजन। ज़्यादा खट्टा खाने की वजह से भी आई थिंक होती है, मैंने सुना है लोगों से। बहुत ज़्यादा खट्टा, मतलब खट्टा, देखिए अगर खट्टा आपका विटामिन सी रिच है देन देयर इज नो इशू, बट अगर आपका खट्टा जा रहा है जिसमें आप केवल बाहर की चीज़ें ले रहे हैं एंड इट हैज़ अ हाई इनटेक ऑफ स्पाइसेस विच आर कम्प्लीटली प्रोसेस्ड, देन इट्स एन इशू। थायराइड को भी रेगुलेट करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। कुछ योगा पोस्चर्स आप जानते हो जिससे क्योर हो सकती है थायराइड? सो थायराइड के लिए आपके 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो मैं अपने हर पेशेंट को भी कहता हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। वन इज़ डाइट। आप मेक श्योर करें कि आप एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो। अगर आपके फाइबर्स और प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहेगी और पानी आप इनफ लेंगे तो आपका थायराइड रेगुलेटेड रहेगा। सेकंड इज नॉट टू कंज्यूम गोइट्रोजेनस फूड। गोइट्रोजेनस मतलब केल, टर्निप, रेडिश, सोयाबीन, ये चीज़ें आपके थायराइड को डिसमेंटल करती हैं या कब थोड़ा थोड़ा आपको हिलाती हैं, सो यू शुड अवॉइड टेकिंग दैट। एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। डेली रेगुलेटेड 40 मिनट्स ऑफ वॉक or at least 10 times सूर्य नमस्कार in the morning is very helpful for your thyroid regulation. अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं मॉर्निंग में, it will increase your flexibility, increase your stretching and lower back पे आपका बहुत अच्छा पड़ेगा फर्क। सो इसीलिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, पूरे दिन की आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, तो वो वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा है और थायराइड को रेगुलेट करने के लिए भी अच्छा है। या एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि एक धनिया का पानी भी पिया जाता है। कहते हैं कि धनिया का पानी, जो धनिया होती है वो काफ़ी एक तरीके से अच्छा सब्सटेंस होती है कि अगर आप उसका पानी मतलब रात को धनिया भिगा करके रख दो और सुबह उसको छान करके पानी को पी लो
खाली पेट, और उसके आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आप अपना ब्रेकफास्ट मत करो, वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये मेरे से हर रोज़ करीबन 2 से 3 पेशेंट्स हर रोज़ पूछते हैं कि धनिया पानी से क्या होता है डॉक्टर चारू। सो मैंने अपनी पहले की रील्स में भी बताया था कि धनिया पानी पीने से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग नहीं होती। अगर आप धनिया पानी पीते हैं तो वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, ब्लोटिंग कम करती है, एसिडिटी को कम करती है और आपकी बॉडी में एक ठंडक का एहसास लेकर आती है। सो व्हेन यू ड्रिंक समथिंग विच इज़ हीलिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, तो वो केवल थायराइड को नहीं, आपके सारे ऑर्गन्स में हेल्प करेगी। हेल्प करती है। आई मीन मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी बेटर होता है, बिकॉज आई माई सेल्फ आई टेक दिस ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। वेरी मेथी, धनिया एंड जीरा, यू कैन हैव सॉफ्ट सौफ, यस सौफ ऑल्सो। इसको मैं भिगा करके रात में रखती हूँ और सुबह उठ के मैं इसका पानी छान करके पीती हूँ। एवरी मॉर्निंग आई डू दिस। बट इसका ना एक कैच है जानवी। द कैच इज दैट एवरीबडी शुडंट कंज्यूम ऑल फोर टुगेदर, क्योंकि अगर कुछ लोग जिनको थोड़ा सा यूटीआई के कंडीशंस होते हैं या जिनकी शरीर में एक्ने रहता है, पित्त दोष जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा में, आई एम नॉट एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बट आई रीड अबाउट इट होलिस्टिक हेल्थ में, व्हेन यू हैव पित्त दोष और यू हैव यू नो हीट इनसाइड योर बॉडी कोट एंड कोट, उनके लिए चारों चीजें सूट नहीं करेंगी। धनिया is the safest of all, so if somebody wants to start, they can start with dhania water. Thank you so much for this clarification. I mean, this suits me and this has worked like wonders on me, so I consume it. And obviously people out there should at least try and then, start it. देखो किसी भी नेचुरल चीज़ में आपके पास साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जब तक आप उसको एक्सेस में नहीं लोगे। सो अगर आप उसको लेते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर आप देखिए इस टाइम पे ACV इज इन लॉट ऑफ डिमांड। एवरीबडी इज कंज्यूमिंग एप्पल साइडर विनेगर। व्हाट इज एप्पल साइडर विनेगर? इट्स अ मदर वर्जन ऑफ एन विनेगर। इट्स कीप्स यू एसिडिक, आपके टीथ हेल्थ के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए, इसोफेगस के लिए, लिवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, फैट सेल्स के लिए, इट जस्ट डिटॉक्सिफाइज एवरीथिंग। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। यदि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ACV लेंगे तो आपके दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, आपकी हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, आपका बैक पेन बढ़ जाएगा। सो वेन एवर आई से दैट टेक समथिंग नेचुरल, make sure that you consult your physician about it. Also, doctor, throw some light on PCOS and PCOD as well. So PCOS means polycystic ovarian syndrome. ये एक बहुत साल पहले ये डायग्नोज हुआ था, डिस्कवर हुआ था ये वाला डिसऑर्डर, एंड इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, इसका अगर हम मतलब समझें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपकी एक फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरीज हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं, उसके अंदर सही चीज़ ना होते हुए एक छोटा सा सिस्ट बन जाना जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बट क्या कोई सोच सकता है कि एक ओवरी के अंदर एक छोटा सा सिस्ट है तो वो पूरी बॉडी को कितना ज़्यादा परेशान कर सकता है? दैट्स व्हाट हैपेंस इन PCOS। PCOS में आपके फेशियल हेयर, आपके स्कैल्प हेयर, आपकी स्किन, आपके पीरियड में इरेगुलरिटीज़ होना, ओवरऑल मूड इंस्टेबिलिटीज़ होना, ये आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में इशू, एब्सोल्युटली, फूड इश्यूज, डाइट इश्यूज, आपके ये सारी चीज़ें जो आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ PCOS। और PCOS में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है वेदर इट इज डायग्नोस्ड अर्ली और लेट इन लाइफ, सीक द कंसल्ट ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि PCOS रिवर्सिबल है। पीपल थिंक कि अगर एक बार PCOS हो गया तो मेरे को जिंदगी भर PCOD है, नहीं, एंड PCOS की वजह से वेट गेन होता है, वेट गेन की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, किडनी इश्यूज हो सकते हैं, सब वहीं से स्टार्ट, फैटी लिवर हो सकता है। सो एक हार्मोन की वजह से एवरीथिंग इज गेटिंग डिरेंज्ड। सो what one should do, they should seek the consult of a gynecologist, get your hormone check every time whenever you meet the doctor, make sure that you get your ultrasound on time, preventive health checkups कराएं और देखें कि आप कैसे रिवर्स कर सकती है। इज इट ओनली विद योर वेट मैनेजमेंट, इज इट ओनली विद डाइट, इज इट ओनली विद एक्सरसाइज, और इज इट समथिंग एल्स? एंड PCOS इज रिवर्सिबल, डोंट लेट इट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस। ट्रू। डॉक्टर, जैसे हम PCOS और हॉर्मोन्स फ्लक्चुएशंस की बात कर रहे हैं बॉडी में, तो क्योंकि आजकल का ज़माना हो गया है कैजुअल डेटिंग्स का, फ्लिंग्स का, सिचुएशनशिप्स का, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट करती हैं। बिकॉज अगर आप किसी से थोड़े से टाइम के लिए भी अट्रैक्टेड हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है अच्छा ओके वी वांट टू एक्सप्लोर द फिजिकल इंटीमेसी पार्ट ऑब्वियसली, बट ये चीज़ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आजकल लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये फैशन बन गया है, वेस्टर्न कल्चर से लोगों ने इस चीज़ को उठा लिया है और करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सेक्सुअल लाइफ पे लोगों की अटैक करता है मुझसे, क्योंकि देखा गया है या मैंने सुना है
कि कहीं ना कहीं पिल्स ली जाती हैं, नहीं देखा होता ही नहीं। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, हो गई है, पिल्स ले ली, आई पिल ले ली, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक जो हैवक पड़ता है बॉडी पे वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होता है, डिवास्टेटिंग होता है, कहीं ना कहीं अंदर सिस्टम पूरा हिल जाता है। इस पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब आई मीन व्हाट विल यू से ऑन दिस? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये जनरेशन वाइज नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसमें दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, एक होता है ब्रेन हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ, और एक होता है फिजिकल हेल्थ। जहाँ तक अट्रैक्शन है तब तक तो ठीक है, बट जब वो अटैचमेंट में कन्वर्ट हो गई तब वो प्रॉब्लम करेगी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज यू डोंट नो वेदर द अदर पर्सन इज अटैच टू यू और नॉट। सो इस चीज़ में क्या हेल्प आता है, इसमें आती है लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। अगर आपका कोई भी पार्टनर है, इफ यू आर एक्सप्लोरिंग, अगर आप लॉयल ही नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो यू डोंट नो व्हाट द अदर वन इज डूइंग, एंड इफ यू आर नॉट बीइंग कम्युनिकेटिव इनफ देन यू डोंट नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर वन। इसी वजह से रिलेशनशिप हैज टर्न्ड इनटू अ सिचुएशनशिप नाउ, बिकॉज वो जो घोस्टिंग का एटीट्यूड है वो इसीलिए है क्योंकि you see people are not communicating with each other, they are not telling each other what they think of the other person. Sometimes ये वाला जो हमारा अट्रैक्शन है ये केवल एक दिन के लिए रहता है, कभी एक रात के लिए रहता है, कभी मल्टीपल ऑप्शंस आ गए विद द काइंड ऑफ जैसे हम लोगों को आदत है कि अगर मेरे को अभी धनिया चाहिए तो मेरे को 2 मिनट में ही धनिया चाहिए विद द हेल्प ऑफ एप्स। मैंने ऐप पे डाला और मेरे को 2 मिनट में, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये हमारे दिमाग को खराब कर रही है। When I need something right now. And ऐसी चीज़ें अब इंसानों के लिए भी हो गई हैं, because if I need a girl who is 5'8" and who is good looking, who's a doctor, for example, I will need that girl right now. And I will keep on exploring till I find that girl. तो ये वाली जो चीज़ है ये आपकी लॉयल्टी और ऑनेस्टी में एक ब्रेक लेकर आती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इश्यूज बढ़ते हैं, डिप्रेशन बढ़ता है, एंटी एंग्जाइटी पिल्स लेनी पड़ती हैं, पीपल इवन गेट सुसाइडल टेंडेंसीज फॉर दैट मैटर, जो हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ को लेके, एब्सोल्युटली कैजुअल सेक्स इज नॉट हेल्दी फॉर फिजिकल लाइफ, बट कैन यू completely say no to it? No. Your body is to explore. चाहे वो masturbation हो, चाहे वो casual sex हो, you must explore it as much as you want, but till the limit. और वो limit कौन define करता है? वो आप खुद define करते हैं, because आपकी body की limit आपने ही decide करी है. As long as you are using the right protection and you are communicating with your partner, then there is no harm. Early age sex is absolutely a no-no, because अगर आप एक young adult हैं और you are into polymorphous relationships and you are not using any protection, तो आप अपने आप को और अपने पार्टनर को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे रिस्क पे रखते हैं। Yeah, I also want to discuss about HIV/AIDS. Big issue. Because you never know कि आप किसी से मिल रहे हो and सामने वाले को वो चीज़ है और आपको ट्रांसफ़र हो गई, तो वो तो मतलब HIV का तो क्योंकि कोई वो आया ही नहीं है अभी तक, कोई मेडिसिन नहीं आई है, कोई इलाज ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जानवी, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। HIV has a treatment and HIV has a treatment, it can be controlled. There is HIV is a virus. Removed from your body. HIV is a virus, ठीक है। जैसे बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, HPV, सर्वाइकल कैंसर फॉर दैट मैटर, हर्पीज इन्फेक्शन। सिमिलरली एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीकन कर देता है कि आपको एक छोटा सा बुखार और खांसी भी महीनों तक ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी खराब होते होते यू लीड टू डेथ। बट इज इट द सेम नाउ? नो। अगर किसी को भी HIV पॉजिटिविटी आती है या HIV पॉजिटिव आता है उनकी बॉडी में, तो HIV इज नॉट एड्स। एड्स इज अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ HIV। जब आपकी बॉडी में HIV वायरस का एक लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एड्स, यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एड्स होता है तब जाके आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू कर देती है। लेकिन HIV पॉजिटिव होने पे there are multiple treatments. Even the government hospitals, private hospitals, they provide treatment in form of retroviral therapy, यानी कि ART. अगर आप retroviral therapy टाइम से लेते हैं, आप precautions maintain करते हैं and drug abuse नहीं करते हैं, sexual behavior protected रखते हैं, then you are as good as me and you without HIV or with HIV controlled levels. So HIV होना is a bad thing. HIV को control करना is a must. And HIV is different and AIDS is different. HIV is a virus which causes AIDS. Okay. HIV एक वायरस है, जैसे कोविड का वायरस है, वैसा ही HIV वायरस है। बट HIV जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एड्स में फॉर्म हो जाता है। और एड्स का कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं है। एड्स इज नॉट क्योरेबल बट इट्स ट्रीटेबल। Yes.
वी हैव सीन पेशेंट्स जो कि सालों तक HIV पॉजिटिव एंड एड्स के साथ दे आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. आप उनके साथ खाना शेयर करते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, पार्टी करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. उनका एनर्जी लेवल ठीक है बिकॉज दे आर ऑन मेडिकेशन जिससे वायरस अंदर पैदा नहीं होता है. वायरस अंदर बच्चे पैदा नहीं कर रहा है और वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है. But are they allowed to have sex? देखो, अलाउ इज अ वेरी सब्जेक्टिव फीलिंग. आप अलाउ हैं, आप अलाउ नहीं हैं, दैट्स ये कोई गवर्नमेंट ने गाइडलाइन नहीं बनाई है कि आप रेड लाइट तोड़ेंगे तो आपके फाइन होएगा. इट्स अ कंप्लीट योर ओन फीलिंग. अगर आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं और आप नेगेटिव हैं, एज इन आपका HIV का लेवल बॉडी में बहुत बेसिक लेवल पे है और आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म. बट you must tell your partner कि there is a chance I might transmit because मैं एक टाइम पे मैं HIV पॉजिटिव था. Speaking of masturbation, how often a person should masturbate? इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जानवी. मैस्टरबेशन क्या है? चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, और मे बी वो इंटरसेक्स हो. मैस्टरबेशन इज अ वे टू एक्सप्लोर योर ओन बॉडी. आप अपनी बॉडी को उस फॉर्म में एक्सप्लोर करते हैं जिसमें कोई और नहीं देख सकता या फील कर सकता व्हेन यू आर अलोन. एंड इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. मैंने वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चूज करें. नॉर्मल एज इन देयर इज नो हार्म. फिजियोलॉजिकल मतलब आप पैदा ही उस प्रोसेस के साथ होते हैं. एंड प्रोसेस यानी कि ये कोई एक सेकंड का काम नहीं होता. इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड मैस्टरबेशन. नाउ मैस्टरबेशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड इट कैन बी डन एंड इट शुड बी डन. बिकॉज यदि आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप उसके येस और नो का जवाब नहीं पता कर पाएंगे व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी और यू आर शेयरिंग द फिजिकल इंटीमेसी विद समबडी. बट मैस्टरबेशन तब तक ही होनी चाहिए जब तक वो आपकी डेली एक्टिविटीज को हार्म ना करे. कुछ पेशेंट्स मैस्टरबेशन के आते हैं when they are addicted to a level when they can't live without it, when they are not focused on their job, when they have to use the toilet again and again, when they are waiting for the break to happen. ये चीज़ें जब होती है तो ये आपके दिमाग में again in the form of addiction बन जाती है, whether it is women, whether it is men. So there is no definite answer कि कितनी बारी करना चाहिए. You can explore it as much as you want, but it shouldn't affect your daily activities so that you don't get addicted to it. I mean, you have said it in a very right manner, but masturbation क्योंकि ज़्यादा करने की वजह से I feel आप एक expectation बना लेते हो अपने mind में कि this is how your body is getting pleasure. तो वो चीज़ फिर जब आपकी रियलिटी में फुलफिल नहीं होती है या आप पॉर्न वगैरह देख के मास्टरबेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप जब वो चीज़ रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आपके माइंड में एक इमेज होती है. एग्जैक्टली आपको लगता है कि ये तो मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री को एक हॉलमार्क दे देती है. आई मीन विच इज़ नॉट अ राइट थिंग. अब देखो, इसमें ना मैस्टरबेशन नहीं है. आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे दिया. दिस इज पॉर्न एडिक्शन. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर मैस्टरबेटिंग विद योर ओन बॉडी, कहीं पे भी नहीं लिखा दैट यू हैव टू वॉच अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवी टू अराउज यू. ये कहीं पे नहीं है. Masturbation is a normal process. You can think about it and masturbate. You can have a feeling of orgasm and you can masturbate. But जब आप एक external stimulus, चाहे वो एक कुत्ता हो, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो एक बुजुर्ग इंसान हो, अगर आप उसके stimulus की वजह से आप अपनी sexual arousal ले रहे हैं, then it becomes an addiction. And when it comes to porn addiction, it's a sexual disorder. ये मैं बड़े clearly बोल रहा हूँ, it's a mental health disease. Because जब आप porn addicted हो जाते हैं, तो आप अपने ब्रेन में एक आउटसाइड स्टिमुलस से एंडोर्फिन्स रिलीज कर रहे हैं. और एंडोर्फिन्स वो हार्मोन है जो कि आपके फिजिकल इंटीमेसी में, बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग में, अगर एक अपने आप पार्टनर को टच भी करते हैं, व्हेन यू हग योर मॉम, व्हेन यू हग योर डैड, वो जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्फिन. सो वो एक हैप्पीनेस हार्मोन है, राइट? वो आपको फील गुड देता है. बट उस टाइम पे आपको फील गुड कौन दे रहा है? एक पॉर्न मूवी. सो जब आप एक नॉर्मल मूवी या पॉर्न मूवी देख रहे हैं एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ फिजिकल इंटीमेसी विद योर पार्टनर, वो एंडोर्फिन्स आपके रिलीज नहीं हो पाएंगे. बिकॉज आपने अपनी ब्रेन को ऐसे वायर कर दिया है कि वो जब तक वो चीज़ नहीं देखेगा तब तक द अराउजल वोंट हैपन. And that is the reason of most of the relationship issues. अगर आप देखें, divorce cases are increasing. Why? Because physical intimacy is not developing. Interdependency is not happening. लोग इतने independent हैं कि that they can arouse themselves physically and mentally with themselves. मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ, arouse भी कर सकता हूँ, एक parent का behavior भी खुद ही कर सकता हूँ. Then why do I need it? So जब तक हमारे अंदर as humans interdependency नहीं रहेगी, things will continue to fall apart. So, doctor, what will you say on period sex? Because period sex कहा जाता है कि it helps in easing the cramps. So, is it healthy or is it not healthy? Is it advisable कि नहीं करना चाहिए या कैसे मतलब करना चाहिए? It's normal. Chanvi, it's normal. First of all, the word is, it's nothing wrong in having
sex during menstrual cycles or sex during periods. There is no medical advisory or scientific discussion to say कि आप अगर periods में sex करेंगे तो it's very harmful. वो harmful सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से है. एक है lack of hygiene. There is a high chance that you might get into an unhygienic area because of which there's a high spread of infections. The second is high risk of sexual transmitted diseases. When there's any form of bleeding, आप समझिए blood is a very nutritious food. अगर आज आप अपने यहाँ पे आपके चोट लग जाए और ब्लड बहता जाए, थोड़े टाइम में आप खुद देखेंगे कि कीड़े मकोड़े उसके ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे. एंड इट हैपेंस. दैट्स व्हाई इन एन ऑपरेशन थिएटर वी मेंटेन स्टेरिलिटी, क्योंकि जैसे ही ब्लड निकला, ब्लड एक फुल ऑफ शुगर, फुल ऑफ फूड, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस मीडियम. इट्स लाइक योर avocado toast. Everybody loves it. So similarly, the bacteria, the viruses, they love the blood. सो जब आप एक ब्लड एरिया में, ब्लडी एरिया में, या जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे आप कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एंटर करवा रहे हैं, सो देयर इज अ हाई रिस्क कि आप वहाँ के बैक्टीरिया और वायरसेस को अपने अंदर वापस लेके जाएंगे, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस. ऑल दीज वायरसेस कैन एक्चुअली, और बैक्टीरिया कैन एंटर योर human body if you are having a period sex. So hygiene and infections are a big issue. The third is communication. अगर आप अपने पार्टनर से communicate नहीं करते हैं and you don't feel free with your partner to talk about period sex and you just do it as a therapy, then it's not going to help. क्योंकि आप एक को तो थेरेपी पहुंचा रहे हैं और दूसरे की आप मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं. सो स्कैरी बन जाता है, स्कैरी सामने बन वाले जाता है ना. सो इसके लिए आप अच्छी तरह कम्युनिकेट करें, आप समझें कि क्या रीजनिंग है. इज इट जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस, देन इट विल बी फाइन. or is it just for fun? Yeah, if it's just a normal fun process, you can have it. But you should take all precautions while doing it. Maintain cleanliness, maintain hygiene, and use protection. Very important. सही बात बोली है आपने बिल्कुल, क्योंकि बहुत मिथ भी है इस बात को लेकर के कि नहीं करना चाहिए. नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप. या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया. Rather, आप बिलीव नहीं करोगे जानवी, यदि आप whenever anyone has any physical intercourse during cramps or during menstrual cycles, आपकी बॉडी में endorphins और oxytocins रिलीज होते हैं because it's a rubbing of one body part to another. और जब endorphins और oxytocin रिलीज होते हैं तो आपके पेन रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं. एंड व्हेन द पेन रिसेप्टर्स क्लोज डाउन, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बॉडी पेन एक फीमेल को लोअर पेन में, लोअर एरिया में होता है बिकॉज ऑफ द साइकिल्स, एंड दे डोंट फील एनी पेन. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. दे फील आई एम रिलैक्स नाउ. मुझे आपसे डॉक्टर हार्ट अटैक के बारे में भी डिस्कस करना है. आजकल 24-25 साल की उम्र में भी अगर हार्ट अटैक आ रहा है, इट्स नॉट अ शॉकिंग थिंग, क्योंकि आ रहा है आजकल. लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा चीज़ें आजकल ऐसे एकदम बढ़ती जा रही है कि हार्ट वो प्रेशर संभाल नहीं पा रहा है. तो आप बताओगे कि इसके क्या, हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, ऑल्सो इसके सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर किसी को ऐसा हार्ट अटैक वाला फीलिंग आ रहा है, तो मतलब हाउ कैन वी वर्क ऑन इट. सो कार्डियक डिसऑर्डर्स पहले के ज़माने में केवल एक एल्डरली इशू होता था. पहले हम देखते थे कि किसी को ब्लड प्रेशर भी अगर हाई रहता था तो हमारे दिमाग में आता था कि एक एल्डरली आदमी 50+ या एक मिडिल एज फीमेल 40+, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है और उनको चेस्ट में पेन हो रहा है. बट नाउ हम देखते हैं गरबा नाइट में 14 साल का बच्चा स्कूल में खड़े हुए, थैंक्स टू सोशल मीडिया हमें पता लगता है 11 साल का बच्चा एक हॉलवे में चल रहा था एंड ही सडनली कोलैप्स्ड एंड देयर वाज अ सडन कार्डियक डेथ. कार्डियक डिसऑर्डर्स आर डेफिनेटली ऑन द राइज जानवी. बट ये क्यों हो रहा है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं. सबसे पहला है स्ट्रेस. जैसा आपने बोला, टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्किंग वैल्यू पे चलता जा रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और वो सारी एक्टिविटी आपके हार्ट पे ट्रांसमिट होती है. सेकंड इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग कॉर्पोरेट वर्क, वी आर सिटिंग ऑन आवर डेस्क फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स. वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है. हमारा स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है. हम रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं. हमारी बैलेंस डाइट नहीं है. वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एडिपोज फैट, वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, फ्राइड फूड्स, जिसकी वजह से इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट. लिपिड प्रोफाइल कोई चेक नहीं करवाता है. एंड कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. कोविड के बाद देखा गया है कि कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हमारा खून बहुत मोटा हो गया था. इट गॉट थिकर, बिकॉज ऑफ विच जब खून मोटा हो जाएगा तो उसकी वजह से खून ढंग से बहेगा नहीं. एंड व्हेन द ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, इट कॉजेज पेन इन द चेस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स. अब ये सारे रीजंस हो गए हैं. इसका प्रिवेंशन भी भाई पॉसिबल है. एब्सोल्युटली. इफ यू गो टू योर डॉक्टर रेगुलरली, एटलीस्ट once in 6 months, एंड गेट योर कार्डियक प्रोफाइल, जिसमें आपके कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, आपका ECG आता है, इको आता है. यदि आपकी पहले की फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा और जल्दी शुरू करना चाहिए. यदि आपका कोई स्ट्रेनस लाइफस्टाइल है, जैसे आपने बोला जिम यूजर्स, वेट लिफ्टर्स,
ट्रेनर्स, इनको ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग देयर हार्ट अलॉट. इनकी कैपेसिटी हार्ट की x है बट दे आर यूजिंग इट 2x एवरी डे. That is one reason that you can take care of it. Avoid unnecessary supplements and absolute no use of steroids. बिकॉज स्टेरॉइड्स बेसिकली आपके हार्ट को और आपकी किडनीज को कभी ना कभी बैठा ही देंगे. और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है योर डाइट. इफ यू मेंटेनिंग अ गुड डाइट विच इज गुड इन फाइबर, less in lipids, and maintaining good water intake to detoxify yourself, there is nothing better than that. Keep moving, keep jogging, maintain your 10,000 steps every day. There is no issue, your heart will be absolutely fine. But अपनी family history को समझें. अगर आपको बहुत मेजर कोविड हुआ था या आपकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक प्रॉब्लम्स की, तो आप अपने डॉक्टर का कंसल्ट रेगुलरली करवाएं. क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रिजर्व्ड फूड्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मिलावट होने की वजह से भी खाने में, दूध में, हर चीज़ में मिलावट देखी जा रही है. तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस लेवल का न्यूट्रिशन उसमें से ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल विद द एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आप एडिकेट अमाउंट ऑफ स्वेट बहाओ अपना जिम में, वर्कआउट करो, सही खाना खाओ, सही टाइम पे सो, और कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल पे एंशियस मत करो कि आपको वो स्ट्रेस लेने पे मजबूर कर दे. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माइंडफुलनेस का. योर हेल्थ इज इन योर ओन हैंड्स एंड योर ओन ब्रेन. अगर आप हर चीज को ऑन योर फिंगर टिप्स करना चाहोगे तो वो नहीं होगा. यू हैव टू गिव टाइम, बी पीसफुल, इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स विच de-stresses you, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्लेइंग अ गिटार, सिंगिंग अ सॉन्ग, रीडिंग अ बुक. फेवरेट हॉबी, यू नो, बट हॉबीज को केवल सोशल मीडिया तक मत रखो. इफ यू लाइक ट्रैवलिंग shouldn't become a stress, it should become a de-stressor. So similarly, like enjoying a cup of coffee, you know, आजकल देखिए Gen Z is completely addicted to coffee. मैंने अपने पेरेंट्स को कॉफी पीते इतना नहीं देखा था जितना मैं पीता हूँ, और मेरा छोटा भाई उससे बहुत ज़्यादा पीता है. Why? Because there's a cafe culture. You know, people love to go to cafes, explore, enjoy their toast and cookies and coffee. But caffeine only in limited amount. यदि आपने अपनी caffeine की मात्रा बहुत बढ़ा दी, that also will constrict your blood vessels and cause damage to your heart. was amazing speaking to you, doctor. And आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे और इंसाइटफुल तरीके से हम लोगों को सारे आंसर्स दिए हैं. मैंने आपसे बहुत चीज़ें कोशिश की हैं कि मैं पूछ के आपसे ग्रैस्प कर सकूं, अपने ऑडियंस को बता सकूं, एंड आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही कॉन्वर्जेशंस करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Janvi. It was a pleasure talking to you. थैंक यू.